Hello friends, I am Dr. Rajiv Gupta. I am taking a lecture series on paper solutions of organic chemistry, paper code PS01CCHE22, and this paper is Sardar Patel University's examination paper 2019, and we have seen many MCQ questions, short questions and some long questions. Now we reached to this question in the last lecture, where we have to assign the configuration to these given molecules, these chiral molecules. So we have to check the configuration of these molecules and assign the configurational symbols. Means it could be R or it could be S according to our Kahn and Gold-Prelog's nomenclature system. So first of all, the given structure is a paracyclophane compound. Okay, it is a paracyclophane where two benzene rings are situated just nearby, just like a sandwich model, and these two rings are attached to these ethylene groups. Okay, now one substituent is attached to the one benzene ring, that is amino group. So due to presence of this amino group, this paracyclophane compound becomes chiral. So here this compound contains no plane of symmetry, no center of symmetry. In the absence of this amino group, this compound was achiral and optically inactive due to presence of plane of symmetry. So in benzene ring, in this planar system, where all the 6 carbon atoms of this benzene ring and these 2 methylene carbon atoms, all the 8 carbon atoms in a single plane. In this plane, when we make a substitution, then this plane becomes a chiral plane. So this paracyclophane compound is an example of a chiral plane molecule. So it contains a chiral plane. So here we have to assign configurational symbol to this chiral plane. So what we do first, the substitution is present in this above side, top side ring system. So this whole portion which is present in a single plane just nearby carbon atom on this methylene group, over this methylene group, is called a pilot atom. This is a pilot atom here because it is just nearby to this substituent. So this pilot atom, from this pilot atom, if we observe this structure, so first of all we provide the numbering to this chiral plane according to rules. Here we provide number 1, this number 2, and this is number 3. And now we move from 1 to 2 and 1 to 2 and 2 to 3. 1 to 2 and 2 to 3. If it is clockwise movement, so we assign R, and if it is anti-clockwise movement, so we assign S. So 1 to 2, 2 to 3. Now the movement is what? The movement is anti-clockwise, so it should be S. But the rule is, when pilot atom is situated below the planar system, then we reverse our answer. So actually it contains R. So we can also solve, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कीजिए. पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा. इस मॉलिक्यूल को यहाँ से आप 180 डिग्री रोटेट कीजिए. अब ये 180 डिग्री रोटेशन हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक नहीं कर रहे हैं, जस्ट मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इजीली विजुअलाइज करने के लिए.
तो जब इसको यहाँ से 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये जो टॉप पोर्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल हमको ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ मॉलिक्यूल में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे से इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये जो एमीन ग्रुप आपको पीछे की साइड दिखाई दे रहा था वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अब हमने उसी तरह से नंबरिंग कर दी 1, 2 एंड 3। अब पायलट एटम जो नीचे था वो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और पायलट एटम से हम पायलट एटम की तरफ से जब इस मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व करेंगे और 1 to 2 to 3 हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो आर्क की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पर हम आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आर। सो इट्स कॉन्फिगरेशनल सिंबल मीन्स फॉर दिस chiral molecule, for this paracyclophane chiral plane, this has R configurational symbol. ओके, इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें ये वाला मॉलिक्यूल दिखाया गया है। दिस इज एलीन डेरिवेटिव। इट इज एग्जाम्पल ऑफ chiral axis. This molecule contains axis of chirality where this axis is chiral axis, or we can say this molecule is a elongated tetrahedral. It is a allene derivative. Okay, allene में 4 हाइड्रोजन एटम्स और 3 कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो किन्हीं 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा यहाँ पे रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल जो है वो किरैल हो गया है, बिकॉज ये एक्सिस यहाँ पर किरैल एक्सिस है। इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, इस मॉलिक्यूल में आप विजुअलाइज कीजिए कि इतना पोर्शन जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द स्क्रीन में है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वेज पर प्रेजेंट है, मतलब टुवार्ड्स द व्यूअर, और हाइड्रोजन एटम अवे फ्रॉम द व्यूअर जो कि डैश पर प्रेजेंट है। ओके, अब इस मॉलिक्यूल में जो किरैल एक्सिस है उस किरैल एक्सिस के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है कि कॉन्फ़िगरेशन सिंबल क्या होगा, एस होगा या आर होगा। तो उसके लिए हम इस मॉलिक्यूल को कैसे इमेजिन करते हैं कि आप इसको यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर लीजिए। तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ये वेज डैश वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो हमको ये स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखाई देगा। ओके, प्लेनर पोर्शन ऊपर की तरफ आ गया और वेज डैश वाला पोर्शन नीचे चला गया। ओके, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट हमको एक जो प्लेनर पोर्शन है उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखना है। ठीक है ना, दिस इज द प्लेनर पोर्शन जहाँ पर ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हम कंसिडर कर रहे हैं, मिथाइल एंड हाइड्रोजन। ओके, मिथाइल एंड हाइड्रोजन। मिथाइल लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना है। हाइड्रोजन एटम जो राइट साइड में है उसको राइट साइड में रखना है। उसके बाद में वेज को ऊपर की तरफ बनाना है, और वेज पर क्या रखना है, कार्बोक्सिलिक, ये वेज पर आ जाएगा, और हाइड्रोजन को कहाँ रख देना है, डैश पर। ओके, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जस्ट आप ऐसा समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस साइन ड्रॉ कर रहे हैं। जस्ट एक प्लस साइन, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस साइन में ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमको कौन सा पोर्शन रखना है, प्लेनर पोर्शन। तो प्लेनर में लेफ्ट साइड में क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद में वेज पोर्शन पे क्या है, जो नीचे की साइड हम वेज पोर्शन देख रहे हैं, उस वेज पोर्शन को ऊपर इस तरह से दिखाना है प्लस पे, दिस इज कार्बोक्सिलिक, और जो डैश पर प्रेजेंट है दैट इज हाइड्रोजन, तो दिस इज हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो अब हमको जो किरैल एक्सिस है उसका ये सामने से फ्रंट व्यू पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब हमको CIP नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको नंबरिंग प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले वेज डैश पोर्शन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और ऑब्वियसली कार्बन गेट्स मोर प्रायोरिटी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल गेट मोर प्रायोरिटी बिकॉज कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक को नंबर 1 दे देते हैं, हाइड्रोजन को नंबर 2। ओके, अब इसके बाद में हम सीधे सीधे किस पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे।
हॉरिजॉन्टल लाइन पे या फिर प्लेनर पोर्शन पे। यहाँ पर मिथाइल गेट्स प्रायोरिटी ओवर हाइड्रोजन, तो मिथाइल को नंबर 3 देंगे और हाइड्रोजन को नंबर 4। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि पहले वेज डैश पोर्शन को पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे आना है। अब नाउ रूल वही है, किरैलिटी रूल 1 से 2 एंड 2 से 3 आपको आर्क ड्रॉ करना है, यानी 1 to 2 एंड 2 to 3, 3 बाद में आना चाहिए। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब क्या होगा आर। सो इट इज आर, कॉन्फिगरेशनल सिंबल इज आर। यहाँ पे कोई हमको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है आंसर को कि आर का एस करना है या एस का आर, क्योंकि किरैल एक्सिस के केस में हमको यहाँ पर इस तरह से जो हमको आंसर मिलता है हमको उसको एज इट इज़ रखते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्व करने का मेथड है ये एक्चुअल में यहाँ पर एक मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन यहाँ पर ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है। दिस इज़ नॉट फिशर प्रोजेक्शन। ओके, जो हमने ये प्लस से दिखाया, दिस इज़ नॉट फिशर प्रोजेक्शन। ओके, तो किरैल प्लेन के लिए भी हमको आर कॉन्फ़िगरेशन मिला और किरैल एक्सिस के लिए भी हमको आर कॉन्फ़िगरेशन मिला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why does a mixture of HCl and AlCl3 not lead to the product of addition with benzene? तो यहाँ पर बात की जा रही है एडिशन रिएक्शन की कि HCl AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन नहीं देता। ओके, HCl और AlCl3 का जो मिक्सचर है, ये जो रिएजेंट का मिक्सचर है, वो बेंजीन सबस्ट्रेट के साथ में या रिएक्टेंट के साथ में एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो फिर कौन सा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमको पता है कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि एडिशन की बात यहाँ पर कैसे आई। देखिए, अगर हम HCl की रिएक्शन किसी एल्कीन के साथ में कराएं, एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड कैसे भी, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कैसा भी डबल बॉन्ड है, अगर हम किसी सिंपल एल्कीन के साथ में HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, जहाँ पर एक डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में ऐड होगा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के साथ में आ जाएगा। तो वहाँ पर जो सिंपल एल्कीन्स होते हैं जो कि नॉन एरोमेटिक होते हैं, वो इजीली एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन अगर आप बेंजीन को देखें तो बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, 3। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर एक बेंजीन अणु के साथ में 3 HCl मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो सकता है। ओके, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, तो 3 HCl मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। लेकिन बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर बेंजीन की एडिशन रिएक्शन हम करवा दें तो ये बेंजीन जो कि एरोमेटिक नेचर रखता था वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको अच्छे से पता है कि एरोमेटिक जो एरोमेटिसिटी है, जो एरोमेटिक नेचर है कंपाउंड की, वो उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एरोमेटिसिटी के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब अगर हमने यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करवा दिया किसी भी एक डबल बॉन्ड पर, बेंजीन के किसी भी एक डबल बॉन्ड पर, तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी और मॉलिक्यूल में जो प्रोडक्ट हमको रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं मिलता, इसकी बजाय हमको यहाँ क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वही यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स अनलाइक एलिफेटिक कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक न्यूक्लियस व्हेन क्रिएटेड विद सुटेबल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहाँ पर कंपेयर बताया है, अगर हम साइक्लोहेक्सीन यूज़ करते हैं, साइक्लोहेक्सीन जिसमें ओनली सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, सिंगल एक डबल बॉन्ड है, और अगर आप उसकी रिएक्शन Br2 से कराते हो, ब्रोमिनेशन करवाते हैं, तो हमको डाईब्रोमीन, यहाँ पर डाईब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है जिसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। और ये रिएक्शन काफ़ी पॉपुलर है और इसमें इजीली एडिशन रिएक्शन मिलता है। लेकिन अगर हम
बेंजीन के रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं तो वो रिएक्शन एक तो इजीली फीजेबल नहीं है, इजीली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमको एक कैटलिस्ट चाहिए होता है FeBr3 जनरली, जैसे AlBr3 या FeBr3, और उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, यानी ब्रोमीन एटम ने ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद यहाँ पर ऐड हो गया, और बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी यथावत बनी रही, यानी ब्रोमो बेंजीन फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये एक्चुअल में एडिशन रिएक्शन नहीं है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्यों होगा ऐसा कि अगर आप ब्रोमिनेशन डायरेक्टली करवा देते हो तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, जो बेंजीन एरोमेटिक नेचर रखता था वो अब कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सो दिस रिएक्शन इज नॉट थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, सो रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से लुईस एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर जो AlCl3 है वो लुईस एसिड का काम करता है, जो कि HCl से क्लोराइड को Cl- को कैप्चर कर लेता है, और H+ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दिस H+ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, और दिस H+ अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग एंड गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो HCl के साथ में अगर AlCl3 की प्रेजेंस में आप बेंजीन की रिएक्शन करवाओगे तो उससे फाइनली क्या बनेगा, बेंजीन ही बनेगा, क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। ओके, क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, ओनली क्या बनेगा, बेंजीन ही बनेगा, यानी हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, पर एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम ही रिप्लेस, हाइड्रोजन आयन ही, इलेक्ट्रोफाइल ही रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो जनरली ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में होती हैं, जहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल पहले बेंजीन रिंग के ऊपर ऐड होता है, ऐड होने के बाद में एक व्हील एंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और उसके बाद में यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो है वो H+ के रूप में रिमूव होता है, और वापस से एरोमेटिसिटी अकर हो जाती है, वापस से एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है। Okay, next part of this paper, of this question paper, I will discuss in next lecture. Thank you for listening this lecture.